Hello, friends. A very hearty good afternoon to you all. Let's welcome you all to the Unacademy Gate CCH channel, a one-stop solution for all your gate and ES related problems. सबसे पहले तो फ्रेंड्स बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं सबको दिवाली की। ठीक है फ्रेंड्स, सब मस्ती से एंजॉय करना, एकदम खूब एंजॉय करना फ्रेंड्स, एकदम ठीक है ना। बट थोड़ा सा देर पढ़ाई के लिए भी निकाल लो, थोड़ा सा देर पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे भी एग्जाम बहुत क्लोज आने वाला है, तो आई गेस एक दिन में तो सब थोड़ा थोड़ा लेक्चर हर सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, फिर उसके बाद एंजॉय करना और क्या फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए आज हम लोग क्लास ले रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने बोला था कि स्पेशल क्लासेस लेंगे फ्रेंड्स, बट आई थिंक वी कैन टेक सम can study something today so that our fluid mechanics get nearly completed and only very small topics are left, ठीक है। तो इसीलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखेंगे हार्डी क्रॉस वाला एग्जांपल। उससे पहले हम लोग पावर और मतलब कि जो लिक्विड फ्लो करता है उसका पावर क्या है वो देखेंगे। पॉइंट टू, वी विल सी हाउ टू solve the series and parallel connection of pipes, ठीक है। So let's start our today's class with high intensity and high energy friends, ठीक है। So as you all know, my name is Ashish Kumar and I've done my BTech in civil engineering from ITBHU. I have qualified GATE 2021. Now my friends, the benefit of the plus classes. Here you will have access to all our live classes. We have weekly tests, courses are structured. You will have unlimited access to our videos and solutions. We have rank improvement batches and crash courses. Okay? In iConnect, you will get all the benefits of the plus classes, and along with that, you will get a personal coach, study planner, study booster sessions, personalized test analysis, preparatory study material, and dedicated doubt clearing instructors. Now, my friends, as we have been telling you that the prices of Unacademy Gate and ESC subscription for iConnect would be hiked by about 12.5 percentage from November 1. So here are the new prices, friends. You can see these are the that plus subscription prices, friends, and these are their respective monthly costs. Okay, and these are the Iconic subscription prices, friends, written below, and these are their respective monthly costs if you are not able to pay all at once. And my friends, if you go for any type of subscription, whether plus or iconic, use my code akumar10 and you will get extra 10% off on our subscriptions. Okay friends, if you go for any subscription whether plus or iconic, use my code akumar10, you will get extra 10% off. Now in live mentoring product here, with the all new Iconic subscription, friend, you will have a chance to interact directly with your mentors who will be telling you the solution, clearing your doubt, or whichever topic you have. Okay, friends. In one is to one means direct. You can directly contact with your mentor. You can directly get your doubt clear for them from them. Okay, friends. So join this all new Iconic subscription and use my code ACOMAR10 to get extra 10% off. Yeah. Now, the features of special classes. You have interactive live classes. We have polls for you through which you can respond to the questions which we ask from you using raise a hand feature. You can ask your doubts from us. Okay? You will be notified for your classes before the starting of the class. You will be notified through a notification. You will have lecture notes available with you at the end of the class in the form of PDF, and you can watch your lecture anytime from anywhere. Yeah, in Unacademy Ask a Doubt initiative, friends, you can ask unlimited doubt of whichever topic you have. We will be sending you the solution in English as well as in Hindi, that too in HD quality. Okay, friends. Now, as we have been telling you that the Arohan batch for GATE and ESC 2023 would be starting from 3rd November. It has already started from yesterday, friends. Okay. If you have not yet joined this batch, go and join this batch before being late, friends. Okay. And use my code AGUMAR10 to get extra 10% off. Because in this batches, friends, you can see the top educators would be teaching you, friends. Okay. So don't miss this chance of enhancing your prep for GATE and ESC 2023. We have already started with Engineering Mechanics by Shobit sir at 9 a.m. Now, at last, the dates of Unacademy Combat, friends, for the month of November are 7, 14, 21, and 28. They will be at 11 a.m., friends. The test will be a 1 hour. Don't forget to give this test. Why? Because the benefits are that if you are able to score good rank, friends, then you can even get up to 100% off on your subscription, friends. Okay? So don't forget to give this test, friend.
It will be only of 60 minutes and there will be 20 questions, friends. And use my code AKUMAR10 to enroll for the test. It will be completely free of cost. ठीक है, अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. Let's start our today's class, friends. Let's start our today's class, friends. ठीक है, तो थोड़ा सा पेन सेट कर लेते हैं फ्रेंड्स. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. यार ये सिखाने वाली चीज ही नहीं, ये तुम लोग को सबको आता है फ्रेंड्स. ठीक है, बहुत इजी चीज है. क्या 11th आई गेस वो 12th का टॉपिक था, इलेक्ट्रिसिटी. 11th 12th में तो सब पढ़े होंगे फ्रेंड्स. ये क्या है? रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस. सीरीज कनेक्शन. ये क्या है? पैरेलल. ये सब किसमें है? पैरेलल. ये सब किसमें है? पैरेलल. क्या है ये? पैरेलल कनेक्शन. सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की खासियत, यहाँ चार्ज, आई चार्ज, चार्ज कह रहा हूँ, करंट, चार्ज भी ठीक है, कोई गलत वर्ड नहीं है. ठीक है, आई करंट फ्लो करता है और वो कांस्टेंट रहता है. और इधर क्या है? पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है. नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है. अब पाइप्स में फ्लो क्या करता है? यहाँ पे तो करंट फ्लो करता है. ठीक है, पाइप्स में क्या फ्लो करता है? डिस्चार्ज. तो इसीलिए I is analogous to discharge. I is analogous to discharge. ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस कराता क्या है भाई? अपने इलेक्ट्रिसिटी में फ्रेंड्स क्या पढ़ा था? पोटेंशियल डिफरेंस क्या कराता है? पोटेंशियल डिफरेंस फ्रेंड्स हमारा वो करंट फ्लो कराता है. जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे फ्लो क्यों हो रहा है? हाई हेड टू लो हेड फ्लो होता है. क्यों? अगर मैं कह दूं ये हेड सेम है H1 इज इक्वल टू H2, तो कोई फ्लो होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है. बट फ्लो हो क्यों रहा है? जस्ट बिकॉज देयर इज अ हेड डिफरेंस, हाई हेड टू लो हेड. इसीलिए जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अपना ये इसमें रहता है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जो हम लोग 11 ट्वेल्थ में आई गेस पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे क्या रहता है फ्रेंड्स? V1 minus V2 is analogous to head difference. हेड डिफरेंस. और फ्रेंड्स हेड डिफरेंस, यहाँ पे हेड डिफरेंस किसके बराबर होता है? पाइप के फ्लो में हेड लॉस. सिंपल. अपने केस में जो ये इसको क्या कहते हैं, जो हेड डिफरेंस रहता है किसके बराबर रहता है? हेड लॉस. तो I is equivalent to discharge, head potential difference is equivalent to head loss. इसी कंसेप्ट के बेसिस पे फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेम कंसेप्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन इन पाइप्स. तो सबसे पहले सीरीज कनेक्शन, पाइप्स का सीरीज कनेक्शन. ठीक है, पाइप्स का फ्रेंड्स सीरीज कनेक्शन. तो एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये पेन डिस्कनेक्ट हो गया. हाँ अब ठीक है. तो पाइप्स का सीरीज कनेक्शन. अब पाइप्स के सीरीज कनेक्शन में क्या मैंने बोला? I is analogous to Q. ठीक है, हाँ, I is analogous to Q. और सीरीज में अपना रेजिस्टर सीरीज में कब होता था? जब सेम I फ्लो करे. तो पाइप, अगर मैं तीन पाइप्स बनाऊं, ठीक है, ये पाइप्स हम लोग जोड़ दिए, तीन पाइप्स. ठीक है, ऐसे नट बोल्ट से ऐसे लगा के तीन पाइप्स ऐसे रखे और उनके ऊपर कुछ सर्कुलर प्लेट लगा के नट बोल्ट से टाइट कर दिए, कस दिए उनको. ठीक है, तो क्या सेम रहेगा फ्रेंड्स? Q डिस्चार्ज विल बी सेम. क्या सेम रहेगा? डिस्चार्ज. ठीक है, डिस्चार्ज सेम रहेगा. और यहाँ पे हेड लॉस डिफरेंट रहेगा. हेड लॉस डिफरेंट रहेगा. HL यानी, अरे ये क्या, हाँ एक मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा पेन मेरा बहुत ज्यादा इशू कर रहा है आजकल. ठीक है, ये क्या रहेगा? हेड लॉस यानी HL3. ठीक है, HL3 हो गया. अब इसमें क्या करना है? अब देखो, जैसे तुम्हें पाइप का दे देगा, F दे देगा, L दे देगा, डायामीटर दे देगा, और F1 L1 D1. सिमिलरली
सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिस पेन इज क्रिएटिंग सम इशू। ठीक है, ओहो ये भी खराब हो गया क्या, इसको रब कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा F2 दिया है, मान लो L2 दिया है, D2 दिया है, यहाँ F3 L3 D3। तो यहाँ कुछ नहीं, जो ये पॉइंट है ये और ये, मान लो इनके बीच टोटल हेड, ये लेंथ मत समझना, HL यानी लेंथ नहीं है, HL यानी हेड लॉस है। ठीक है, HL यानी हेड लॉस है। तो HL हेड लॉस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, HL1 प्लस HL2 प्लस HL3। ठीक है, प्लस HL3। तो ये हो जाएगा FLQ बाई 12.1 डी टू दी पावर 5। मैंने याद कराया था, याद रहना चाहिए आपको फ्रेंड। ठीक है, तो F1L1Q अपॉन 12.1 डी टू, ये क्या 12 डी नहीं, अपॉन 12.1 D1 पावर 5 प्लस F2L2 12.1 D2 पावर 5 और Q2, Q2 नहीं फ्रेंड सॉरी Q बाय मिस्टेक, Q प्लस F3L3 बाई 12.1 D3 टू द पावर 5, ये 5 है, इंटू Q, ये हो जाता है। तो अब हम लोग ये कर क्या रहे हैं यार, सीरीज कनेक्शन ये कर क्या रहे हैं, याद करो हम लोग यहाँ पे निकालते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक इक्विवेलेंट R निकालते थे, अगर इसका R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ हमें एक इक्विवेलेंट पाइप निकालना है। व्हाट इज एन इक्विवेलेंट पाइप? in series connection, in series connection, in series connection, equivalent pipe, in series connection, equivalent pipe is a pipe of length L1 plus L2 plus L3। डेफिनेशन लिख के फिर समझा दे रहा हूं, ठीक है, having same discharge, having same discharge and same total head loss throughout length L, and same total head loss throughout length L, throughout length L1 plus L2 plus L3। इसका मतलब हुआ कि मैं एक रेड पेन से बना दे रहा हूं, ये मेरा इक्विवेलेंट पाइप है फ्रेंड्स, दिस इज माय इक्विवेलेंट पाइप। ठीक है, इसमें जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है, पहले लेंथ देख लेते हैं, इसका लेंथ है L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, और इसमें जो हेड लॉस हो रहा है HL, वो इक्वल होगा HL1 प्लस HL2 प्लस HL3, और इसमें से फ्लो होगा Q डिस्चार्ज। यही है मेरा इक्विवेलेंट पाइप। अब इस इक्विवेलेंट पाइप का मैं इंफॉर्मेशन कैसे निकालूं, मेरे से एग्जाम में पूछता है कि इस इक्विवेलेंट पाइप के बारे में कुछ बताओ तुम, तो मैं क्या करूंगा, बस यही करेंगे हम लोग फ्रेंड्स जो अभी हम लोगों ने सीखा है कि उस इक्विवेलेंट पाइप में हेड लॉस कितना होगा, मान लो उसका कुछ हो गया F। ठीक है, अरे फ्रेंड्स क्या हो गया, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ अब ठीक है, F हो गया उस इक्विवेलेंट पाइप का रफनेस, फिर लेंथ हो गया L1 प्लस L2 प्लस L3, डिस्चार्ज सेम हो रहा, फ्लो कर रहा है फ्रेंड्स बाय 12.1, ये डी इक्विवेलेंट पावर 5। ठीक है, और लेंथ को भी ना ऐसे कर लेते हैं L इक्विवेलेंट, इतने बड़े एक्सप्रेशन की जगह L इक्विवेलेंट कर लो। ठीक है, लेंथ कर लो F L इक्विवेलेंट, ये इसको भी F इक्विवेलेंट Q, दिस इज इक्वल टू क्या सेम रहेगा फ्रेंड्स, हेड लॉस। ठीक है, तो F1 L1 Q बाई 12.1 D1 पावर 5 प्लस F2 L2 Q बाई 12.1 D2 पावर 5 प्लस F3 L3 Q बाई 12.1 D3 पावर 5। बस यही है, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। और मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम लोगों को ना फ्रेंड्स FLD तीनों पाइप्स का इक्वल देगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में FLD तीनों पाइप्स का इक्वल देगा, वो लोग एकदम ये नहीं करते कि एकदम बहुत टफ क्वेश्चन बनाते हैं, और गेट में तो और इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, गेट के क्वेश्चन देखोगे बहुत इजी रहता है, स्पेशल क्लासेस में करा दूंगा वो, अभी यहाँ पे पहले अपन लोग पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कनेक्शन। इस सीरीज कनेक्शन में किसी को कोई डाउट फ्रेंड्स,
क्या इस सीरीज कनेक्शन में किसी को कोई डाउट है फ्रेंड्स? क्या इस सीरीज कनेक्शन में किसी को कोई डाउट है फ्रेंड्स? अगर डाउट है सो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, ठीक है भाई, आई विल बी देयर टू क्लियर योर डाउट फ्रेंड्स। एनीवन हैविंग एनी डाउट फ्रेंड्स? मैं हर टॉपिक पढ़ाने के बाद फ्रेंड्स 1-2 मिनट रुक जाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग अपने डाउट पूछ सको। अगर कोई डाउट है फ्रेंड्स पोस्ट कर देना, आई विल क्लियर योर डाउट इन द चैट्स, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट पैरेलल कनेक्शन। व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन? देखो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स की अपना मान लो मैं कहता हूँ पैरेलल कनेक्शन जैसे हम लोग सिंपल करंट के केस में बनाते थे, ये ऐसे, ठीक है, तो वैसे ही पाइप्स रहेंगे। कैसे रहेंगे पाइप्स? ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तीन, और इधर से भी तो कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स, इधर से भी तो कनेक्ट होंगे। दूसरा कनेक्शन पॉइंट मैंने बनाया ही नहीं, ये है, इधर से ये, इधर से ये है अपना ये पाइप्स। इसका मान लो F1 L1 और क्या होता है FL³/12.1 D⁻⁵ D1। और यहाँ तो डिस्चार्ज भी अलग होगा फ्रेंड्स, यहाँ डिस्चार्ज भी अलग होगा। इधर से मान लो Q1, इधर से मान लो Q2, इधर से मान लो Q3, और यहाँ से मान लो कहीं Q आ रहा होगा, ठीक है। बीच वाला F2 L2 D2, नीचे वाला F3 L3 D3। पैरेलल इक्विवेलेंट पाइप क्या होगा? इक्विवेलेंट पाइप, equivalent pipe is the equivalent pipe is the pipe of लेंथ। इन केसेस में पहले तो लेंथ इक्वल रहता है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये इस L1 L2 L3, ये L, ये L और ये L, ठीक है। इक्विवेलेंट पाइप इज द पाइप ऑफ लेंथ L with with discharge equal to with discharge equal to Q1 plus Q2 plus Q3 and head loss equal to and head loss equal to HL। अब ये HL क्या है? अब देखो पैरेलल कनेक्शन में फ्रेंड्स पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहता था। पोटेंशियल डिफरेंस होता है इधर हेड डिफरेंस यानी हेड लॉस HL। ये लेंथ मत समझना HL, हेड लॉस रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो HL इज इक्वल टू HL1 HL2 HL3, तीनों केस में ये सेम रहता है, ठीक है। और डिस्चार्ज जो होगा ना, जो बाहर से आया होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो होता है तीनों का सम। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? ऐसे सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन यूज करना है। क्यू पहले इक्विवेलेंट पाइप तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया, इक्विवेलेंट पाइप ड्रॉ कर देता हूं। ये है हमारा इक्विवेलेंट, ये है, आ गया, सॉरी, ये थोड़ा सा पेन इशू कर रहा है वही बार बार फ्रेंड्स, ठीक है। ये है हमारा इक्विवेलेंट पाइप, ये है L इक्विवेलेंट Q, तो टोटल डिस्चार्ज जो पहले बह रहा था, फ्लो कर रहा था, अभी भी वही फ्लो करेगा Q, और F इक्विवेलेंट और D इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मैंने बोला सेम हेड लॉस, ठीक है, जो HL इज इक्वल टू HL1 इज इक्वल टू HL2 इज इक्वल टू HL3। और दूसरा कौन सा इक्वेशन? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो इससे हो जाएगा HL जो हो जाएगा वो हो जाएगा F L इक्विवेलेंट F इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट, Q फ्लो कर रहा है बाय 12.1 D इक्विवेलेंट पावर 5 इज इक्वल टू F1 L1 Q1 बाय 12.1 D1 पावर 5। यहाँ Q1 क्यों लिखा हूं वो समझो, यहाँ Q1 मैंने लिखा है क्योंकि इधर से Q1 फ्लो कर रहा है, तो जितना डिस्चार्ज फ्लो करेगा उतने का ही लॉस लोगे ना भाई, ये नहीं कि पूरा लॉस ले लिए। तो इज इक्वल टू F2 L2 Q2 बाई 12.1 D टू पावर 5 इज इक्वल टू F3 L3 Q3 बाई 12.1 D3 पावर 5, ठीक है। ये है हमारा फ्रेंड्स हेड लॉस। व्हाट इज दिस? दिस इज आवर हेड लॉस फ्रेंड्स, ठीक है। ये है हमारा हेड लॉस।
अब माय फ्रेंड्स ये बताओ, इसको तुम लोग सॉल्व करोगे और एल इक्विवेलेंट डी इक्विवेलेंट ये निकाल लोगे, ठीक है, बहुत इजी रहेगा, ठीक है। तुमको इसमें भी मोस्टली जो क्वेश्चन देते हैं ना फ्रेंड्स, जो सीरीज पाइप कनेक्शन से, तो मोस्टली तुम्हारा एफ एल डी या तो इक्वल रहेगा, एफ एल डी इधर इक्वल रहेगा, या फिर ऐसा देंगे कि अगर कहीं एल है तो दूसरा 2l, तीसरा l/2, तब एक इंटीजर टाइप में। वो लोग ऐसा नहीं देंगे कि एकदम बहुत ही अजीब अजीब वैल्यूज, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। यहां तक कोई डाउट फ्रेंड्स? आंसर मी इन द चैट फ्रेंड्स, यहां तक कोई डाउट? मैं फिर से 2 मिनट रुक जाता हूँ फ्रेंड्स, ताकि जो भी आपके डाउट्स हो आप क्लियर कर लो, ठीक है। मैं चैट में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो आई गेस किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना फ्रेंड्स, ठीक है, मैं चैट में बता दूंगा। तो आई गेस नेक्स्ट आई शुड स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ये लो पेन फिर से इशू कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स, 1 मिनट मैं इसको सही कर दूं, हाँ अब सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर, ठीक है, पावर। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक फॉर्मूला याद कर लो पावर का, गामा एच क्यू, ठीक है, गामा एच क्यू ये याद कर लो। अब इसको समझते हैं, ये तो मैंने याद करा दिया, अब इसको समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो क्या है कि अगर मैं एक रिजर्वायर बनाऊं, दिस इज अ रिजर्वायर, दिस इज अ रिजर्वायर, इसमें पानी भरा है ये, और अगर ये हाइट एच है, ठीक है, और ये लगभग पूरा एच नीचे तक ही ले जाते हैं। तुम अब इतने के लिए टैक्स थोड़ी काट लोगे बेचारों का कि इतना एच नहीं यार, इतना चलता है, इतना एच कर दो, ये नहीं कि एकदम इतना ही भाई, नहीं इतना ही लेना है एच, नहीं यार, इतना थोड़ा सा बहुत छोटा अमाउंट है। ये तुम इसको, इस एच को क्या करो, इसको नीचे तक ले जाओ, ठीक है। ये ऐसे करते हैं जनरली, एकदम छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए दिक्कत नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। पाइप को समझो, इतना हेड अवेलेबल दे रहा है। अब एफ है इधर, एल है इधर, इसकी लेंथ क्यू इससे डिस्चार्ज मान लो फ्लो करता है, ठीक है, क्यू इससे डिस्चार्ज फ्लो करता है। तो मान लो ये है एल लेंथ यहां तक, ये है एल लेंथ यहां तक, और इधर आते ही पानी ऐसे डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो माय फ्रेंड्स, तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखो, अगर कुछ फ्लो कर रहा है तो इसकी एनर्जी होगी। अगर मैं दौड़ रहा हूँ मेरी एनर्जी है, मैं अगर मेरा ये सेलफोन, इसको मैं ऐसे यहाँ से छोड़ देता हूँ तो इसके पास कुछ एनर्जी है, तब वो नीचे जा रहा है। तो इस फ्लोइंग वाटर के पास कुछ एनर्जी है, उस इन उस एनर्जी के बेसिस पे उसके पास कुछ पावर है, ठीक है। तो अब पावर अवेलेबल, ठीक है, पावर अवेलेबल। अब इसके पास यहां, सॉरी, अब फ्रेंड्स, अब इसके पास यहाँ पे, ठीक है, अब इसके पास यहाँ से अगर वो यहाँ से फ्लो करना चालू करेगा तो इसके पास कुछ पावर अवेलेबल होगी, जो होगा गामा क्यू एच, ठीक है। इतना पावर अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास यानी मैं वाटर हूं, तो मैं कह रहा हूं मेरे पास इस सेक्शन पे इतना पावर अवेलेबल है। और यहाँ पे कितना पावर अवेलेबल है? पावर अवेलेबल, पावर अवेलेबल एट टू, ये इसको एट 1 कर देते हैं, ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2। 2 पे कितना पावर अवेलेबल है? गामा क्यू एच माइनस एच एफ। ये कैसे? एच एफ इज द हेड लॉस। क्या हुआ यहाँ पे? बेसिकली मैंने किया क्या, यहाँ पे मेरे पास इतनी ताकत थी गामा क्यू एच, अब मैं जैसे आगे जाते जा रहा हूँ तो मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने जितना खाना खाया था गामा क्यू एच के बराबर मेरे पास पावर आ गई थी, अब मैं वर्क कर रहा हूँ तो वो लॉस होते जाएगा, और लॉस कितना होगा? एच एफ के अमाउंट का, एच एफ के अमाउंट का लॉस होगा।
तो जो पावर अवेलेबल है 2, यानी काम करने के बाद अब मेरे पास जो गामा क्यू एच में से एच एफ चला गया, तो एच माइनस एच एफ, खाली अब मेरे पास एच माइनस एच एफ एनर्जी बचा है। ठीक है, अब ये एच एफ हो सकता है एफ एल स्क्वायर बाई डी टू जी, एफ एल वी स्क्वायर बाई टू डी जी, डी टू जी करके मैंने याद किया, इजी पड़ता है। ठीक है, प्लस ये एंट्री इन पाइप है तो 0.5 वी स्क्वायर बाई टू जी, ये हो सकता है। या फिर अगर हेड लॉस नेग्लेक्ट कर दो तो ये 0 हो सकता है। तो ये तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन में देखो मोस्टली ना माइनर लॉसेस इग्नोर करने को कह देता है, स्पेसिफाई कर देता है, नहीं करता है तो समझ जाना। ठीक है, चलो ये मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक अगर क्वेश्चन कोई लगाए तो ऐसे दिमाग में रखना कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है माइनर लॉसेस के बारे में कुछ, तो तुम्हें निग्लेक्ट करना है माइनर लॉसेस। बट अगर क्वेश्चन में कह देता है कि कंसिडर माइनर लॉसेस ऑल्सो, या फिर हो सकता है के की वैल्यू दे दे, तो तुम्हें वहां पे खुद समझना है, हाँ भाई तब तो लेना है। बट अगर ना ही के दिया है, ना ही कुछ मेंशन है कि पावर लॉसेस के बारे में, माइनर फ्रिक्शन के बारे में, तो नहीं लेना है। और कुछ क्वेश्चन में तो सीधे लिख देता है नेग्लेक्ट माइनर लॉसेस। ठीक है, तो यहां पे मैं कह रहा था पावर अवेलेबल एट 1 और पावर अवेलेबल एट 2। तो अब इसके बाद एक टर्म आती है एफिशिएंसी। अब इसके बाद एक टर्म आती है फ्रेंड्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ईटा। व्हाट इज ईटा एफिशिएंसी? ठीक है, अब एफिशिएंसी कैसे लिखोगे? अब बताओ, देखो मैं तो ऐसे लिखना आता है मेरे को एफिशिएंसी, कि मेरे को किसी ने 10 रुपए दिया, ठीक है, मेरे को किसी ने 10 रुपीज दिया, और उसमें से मेरे पास आखिरी तक जाते जाते 10 रुपए बचा है। मैं शॉपिंग गया, सामान मैं एकदम कुछ दिमाग लगा के फ्री में खरीद लाया, फ्री नहीं, मान लो 2 रुपए में कुछ खरीदा, ठीक है, तो मेरे पास 8 रुपए बच गया। ठीक है, किसी ने मुझे 10 रुपीज दिया था, मैंने सामान खरीदा, मेरे पास 8 रुपए बचा है, यानी 80% एफिशिएंसी है मेरी। वही किसी मैंने किसी मैं खर्चीला इंसान हूँ, मैं गया, अब मैं 2 रुपए के साथ 2-3 रुपए का चॉकलेट खा गया, कुछ ये खा गया, कुछ वो खा गया, तो 50% मेरी एफिशिएंसी कम है, मैं वेस्ट कर रहा हूँ बहुत लोगों का पैसा। ठीक है, क्या समझे एफिशिएंसी से? कि मेरे को मम्मी ने इतना दिया और उसमें से मैंने सिर्फ 2 रुपए वेस्ट किया, 8 रुपए बचा है, यानी 80%। बढ़िया काम किया है मैंने, बहुत पैसा बचा है। वही मेरे को मम्मी ने 10 रुपए दिया, मैं कुछ खा लिया इधर उधर, चॉकलेट या बहुत सारी चीजें खा लिया, 2 रुपए प्लस 3 एक्स्ट्रा लॉस कर दिया मैंने फालतू का, तो 50% एफिशिएंसी। मेरी एफिशिएंसी कम है, मैंने बहुत फालतू का एक्स्ट्रा लूज किया। तो तो यहाँ पे हम लोग कैसे देखेंगे? यहाँ पे यहाँ पे पावर अवेलेबल कितना था मेरे पास? अरे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स पावर अवेलेबल कितना था मेरे पास? पावर अवेलेबल था गामा क्यू एच। ठीक है, और मैंने आखिरी में काम किया, बहुत काम किया, पानी पाइप से फ्लो करते करते मैंने वर्क किया, और वर्क करने के बाद मेरे पास कितना बचा है? गामा क्यू एच माइनस एच एफ इतना बचा है, इंटू 100 कर दो। मेरे पास इतना क्वांटिटी था और आखिरी में इतना बचा है बस। ठीक है, इतना था, 10 रुपए था, उसमें से 8 रुपए बचा है। ठीक है, एच माइनस एच एफ ही तो बचा था। ठीक है, तो एच माइनस एच एफ बाई एच इंटू 100 इज द एफिशियंसी। ठीक है, इज द एफिशियंसी। ठीक है, अब एक टॉपिक है इसी में, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर, अब मैक्सिमम पावर क्या होता है? देखो हम लोगों ने लिखा था पावर को गामा एच माइनस एच एफ इंटू क्यू। ये मैं एच माइनस एच एफ इंटू क्यू क्यों कर रहा हूँ फ्रेंड्स? मुझे तो गामा एच इंटू क्यू करना था, एच माइनस एच एफ इंटू क्यू कर रहा हूँ, क्यू क्यों कर रहा हूँ फ्रेंड्स? अब देखो क्या है कि गामा क्यू एच तो मेरे पास मैक्सिमम पावर अवेलेबल था, ठीक बात है, पूरा फुल पावर अवेलेबल था। बट यहाँ पे मैक्सिमम पावर यानी क्या? किस चीज का मैक्सिमम पावर? ये एक दो वर्ड से कुछ समझ में नहीं आता है हमें। मैक्सिमम पावर मतलब मैक्सिमम पावर लेफ्ट आफ्टर लॉस, या फिर इसी को कह सकते हो मिनिमम पावर लॉस, कि मैं मतलब कितना कम से कम पावर खुआ रहा हूँ। या फिर मैं अगर कहीं किसी भी प्रोसेस में हेड लॉस हो रहा है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस में हेड लॉस हो रहा है, तो मिनिमम हेड लॉस होने के बाद मैक्सिमम पावर जो बचेगा, ठीक है, हेड लॉस है, हेड लॉस में से मिनिमम पावर लॉस होने के बाद, सॉरी हाँ, मिनिमम पावर लॉस होने के बाद मैक्सिमम पावर जो बचेगा वो कितना हो जाएगा? गामा एच माइनस एच एफ इंटू क्यू। ठीक है, और एच एफ क्या होता है?
HF is FL Q square by 12.1 d to the power 5 into Q. This is equal to P. So dP by dQ is equal to 0 for maximum power. हम लोग यही तो करते हैं फ्रेंड्स 11th-12th में मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलस इंटीग्रेशन सब किस लिए पढ़ा था, यही सब देगा। जैसे 11th-12th में तुम लोग पढ़े थे उसको रिलेट कर पाते हो मोस्टली। अगर तुम्हारे 11th-12th या फिर लोअर क्लासेस वीक रहते ना फ्रेंड्स तो इधर समझने में डिफिकल्टी होती। तो हम लोग 11th-12th पढ़ रखे हैं इसलिए आज हमें ये चीज इजी लग रहा है, ठीक है। तो dp by dq इज इक्वल टू 0। सो d by dq ऑफ, जैसे लिख लेते हैं इसको, d by dq ऑफ क्या था, d by dq ऑफ गामा, इसको ऐसे कर ले रहे ब्रैकेट में, d by dq ऑफ गामा h माइनस एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12.1 d टू द पावर 5 इन, और q अंदर ले आओ यार, बाहर कितना रखोगे उसको बेचारे को अकेले, कर दो इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, गामा h q का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3f l और क्या हो गया q स्क्वायर बाई 12.1 d टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0, और एक गामा भी होगा और कुछ नहीं है ना फ्रेंड्स, 3f l q स्क्वायर 12, हाँ ठीक है, ठीक है ये हो गया। यहां से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहां से आ जाएगा कि गामा को पहले कर दो कैंसिल, ठीक है, कैंसिल कर दो गामा को, h माइनस 3 इंटू एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12.1 डी टू दी पावर 5। क्या ये चीज एच एफ की तरह लग रहा है, तो h माइनस 3 HF इज इक्वल टू 0, तो HF इज इक्वल टू h बाई 3। तो इसका मतलब, अरे इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जब तुम चाह रहे हो, अगर लॉस हो रहा है, अब लॉस को तो रोक नहीं सकते तुम, पाइप एकदम स्मूथ बना नहीं सकते, कोई भी चीज एकदम आइडियल होगी नहीं। तो जब लॉस हो रहा है तो मेन मोटिव रखो कि लॉस मिनिमम से मिनिमम हो, लॉस मिनिमम से मिनिमम हो, और लॉस हमारा मिनिमम हो और ये मैक्सिमम हो, क्या अपना पावर जो बचा रहे वो मैक्सिमम है, ठीक है। या ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक तरीके से मिनिमम लॉस किस केस के लिए, जब पावर मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिख रहे हैं 10 मैक्सिमम पावर अवेलेबल, 10 मैक्सिमम पावर अवेलेबल एट एनी सेक्शन, वो कितना हो जाएगा, गामा क्यू एच माइनस एच एफ यानी एच बाई 3, 2/3 गामा क्यू एच, और ईटा यानी एफिशिएंसी, ईटा एफिशिएंसी ड्यूरिंग मैक्सिमम पावर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 गामा क्यू एच बाई गामा क्यू एच इंटू 100। दिस विल बी, फिर से पेन डिस्कनेक्ट हो गया फ्रेंड्स, दिस विल बी 66.67%। और ये याद रखना फ्रेंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है, पूछता भी है कि मैक्सिमम लॉस के टाइम, सॉरी मिनिमम लॉस के टाइम या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के टाइम, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसमिट हुआ उसके टाइम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 66.7%, ठीक है, 66.7%। ये हो गया। अब अपना फेवरेट टॉपिक से पहले फ्रेंड्स, किसी को कोई डाउट फ्रेंड्स, एनीवन हैविंग एनी डाउट फ्रेंड्स, एनीवन हैविंग एनी डाउट फ्रेंड्स, मैं वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, फिर से 2 मिनट्स के बाद जो भी क्वेश्चन रहे फ्रेंड्स राइट इट इन द चैट, आई विल क्लियर योर डाउट फ्रेंड्स। किसी को कोई डाउट फ्रेंड्स, ठीक है, आई गेस इतना टाइम इनफ है फ्रेंड्स, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक हार्डी क्रॉस मेथड।
ओ सॉरी, हेडरी लिख दिया मैंने, हार्डी क्रॉस होता है ये, ठीक है, हार्डी क्रॉस मेथड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन हार्डी क्रॉस मेथड फ्रेंड्स। इन हार्डी क्रॉस मेथड मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या, देखो अगर मैं कोई पाइप नेटवर्क बनाता हूँ, ठीक है, तो देखो हेड लॉस हमने पढ़ा था ना, एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12.1 डी टू दावर 5, ठीक है। तो अगर मान लो ये तो हमने लेमिनार टर्बुलेंट इन सब केसेस में पाइप्स का लिखा था, बट कई बार होता है ना कि ये जो हेड लॉस है ना, हाँ, ये जो हेड लॉस है ना, एच एफ को मैं एच लिख रहा हूँ या फिर चलो एच एफ ही, वो अगर हम लोग उसको लिखें तो ये कांस्टेंट मान लो कुछ आर, ये आर, और क्यू टू द पावर एन। अब हम लोग ने पढ़ा है कौन सा केस, n इज इक्वल टू 2, हम लोग बीटेक किए हैं तो हम लोग सिंपल n इज इक्वल टू 2 का केस पढ़े हैं, बट एक्चुअली में n इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है, कुछ भी केस हो सकता है। तो हार्डी क्रॉस मेथड हम लोग जनरल चीज के लिए सीखते हैं, ठीक है, हार्डी क्रॉस मेथड जनरल चीज के लिए सीख रहे हैं। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एच एफ इज इक्वल टू आर इंटू क्यू टू द पावर एन, आर इंटू क्यू टू द पावर एन। अब तो मान लो ये पाइप्स है, ठीक है, ये पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3, पाइप 4, और इधर से ऐसे कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, ऐसे कुछ पाइप में फ्लो हो रहा है कि इधर से डिस्चार्ज आया, इधर गया, इधर गया, और कुछ इधर गया, ऐसे फिर यहाँ से पाइप से निकल गया, यही है कुछ डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर ये कुछ Q1 दे दिया और यहाँ से Q2 दे दिया, ऐसा कुछ, मुझे ये जानना है, यहाँ से डिस्चार्ज जानना है, इधर डिस्चार्ज जानना है, इधर डिस्चार्ज जानना है। इसमें कौन करेंगे मदद, हमारे हार्डी ब्रदर, ठीक है, इसमें हार्डी क्रॉस भैया मदद करेंगे, उनका मेथड काम आएगा, कैसे, ऐसे। तो इसमें सबसे पहले निकालते हैं हम लोग डेल्टा क्यू। अब देखो डेल्टा क्यू फॉर्मूला एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा क्यू याद करने का तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट याद कर लो तो अच्छी बात है, जो नहीं याद कर पा रहे हैं उनके लिए एक मेथड है, डी एच एफ इज इक्वल टू एन आर क्यू टू दावर एन माइनस 1, ठीक है भाई, डी एच एफ बाई एच एफ इनटू, बस, यहाँ पे डी क्यू भी तो है फ्रेंड्स, यहाँ डी क्यू भी है, ठीक है, ये समझ रहे हो ना, जब डिफरेंशिएट करते हैं डी एच एफ डी वाई को तो यहाँ पे डी एक्स आता है, वैसे ही टाइप का, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ये 11th 12th का ये क्या कहते हैं, बेसिक मैथ्स है, ठीक है, ये हो गया। तो अब मुझे चाहिए डी क्यू, मुझे क्या चाहिए फ्रेंड्स, डी क्यू। सो डी क्यू के लिए एच एफ बाई एन आर क्यू टू दावर एन, ये एकदम ये मत समझना कि ये मैं इसका प्रूफ करा रहा हूँ, दिस इज नॉट अ प्रूफ फ्रेंड्स, ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये इसको प्रूफ मत समझना। और एच एफ क्या था, अब इसको जैसे मैंने गायब कर दिया, ये टर्म निकालने के बाद इसको मैंने 1 कह दिया और वो भूल गया, ठीक है। और एच एफ क्या था, आर क्यू टू दावर एन, नीचे है एन आर क्यू टू दावर एन माइनस 1। तो एक्चुअली में इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ फ्रेंड्स, या फिर चलो सब एक साथ एक पेज पे अच्छे से लिख लेंगे, ये एक तरीके से रफ पेज समझ रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली डेल्टा क्यू जो होता है वो होता है माइनस समेशन ऑफ आर क्यू टू द पावर एन। अब ऊपर अगर माइनस लगा है तो नीचे भरपाई करेंगे, कैसे, मॉड्यूलस लगा के। ये हो गया याद करने का तरीका, और समेशन भी तो होगा फ्रेंड्स, सॉरी, और ये समेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, फाइनली अगर एच एफ तो इसको पाइप के साथ, ठीक है, ये हो गया, हम लोग डेल्टा क्यू निकालेंगे। अब इतना तो सीख लिया, डेल्टा क्यू निकालिए, इस डेल्टा क्यू का करेंगे क्या, ये भी तो डाउट होना चाहिए फ्रेंड्स। तुम लोग पूछो कि डेल्टा क्यू तो निकाल लिए सर, बट इसका काम क्या, इसका काम अब आएगा, कैसे, ये देखो, मैं तुम्हें कोई पाइप नेटवर्क दे रहा हूं, ठीक है, डिस्चार्ज यहां से कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहां से मान लो कुछ इधर आ रहा है, यहां से बाहर जा रहा है और इधर बाहर जा रहा है, ठीक है, ये मान लो Q1, Q2, Q3, Q4, और मुझे जानना है, ब्लू से बना रहा हूं कि मुझे यहाँ पे QA डायरेक्शन भी जानना है, QB
क्यू सी और क्यू डी। मुझे ये चार वैल्यूज डायरेक्शन जानना है। अब क्वेश्चन में तुम लोगों को फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है आर और एन की वैल्यू, आर और एन की वैल्यू, इस पाइप के लिए आर एन की, इस पाइप के लिए आर एन की। ठीक है, तो करोगे क्या सबसे पहले, और इसको मान लो ये ऐसे कनेक्टेड है, थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्टी बनाते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो मजा कैसे आएगा। इसमें क्यू ई फ्लो कर रहा है और इसका भी कुछ आर ई एन ई है। ठीक है, सबका अलग अलग, एक ही नहीं है, हो सकता है आर वन एन वन आर टू एन टू अलग अलग हो सकता है, और होता भी है मोस्टली, ऑब्वियसली अलग ही होगा। ठीक है, नहीं तो सेम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेथड क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें Q1 है ना, तुम कुछ भी डिस्चार्ज, मान लो ये 30 है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये 30 है, तो 20 इधर बांट दो, 10 इधर बांट दो, एज्यूम कर लो। ठीक है, फिर मान लो इधर से 40 बाहर जा रहा था, ये 10 है, तो अब यहां से तो 10 आ गया, मान लो इसने कुछ 20 दे दिया, इसने कुछ 10 दे दिया। ठीक है, ये सब अलग अलग पेन से लिखता हूँ, ये एक अलग पेन से लिखता हूँ फ्रेंड्स, ताकि डायग्राम गंदा ना हो, तुम्हारे स्टडी के वक्त काम आ जाए। ठीक है, ये लिखता हूं मैं ग्रीन पेन से, एजम्पशन वाली चीजें हैं। तो ये 30 मान लिया, यहाँ से मान लिया 10, यहाँ से 20, और अगर ये 20 है, यहाँ से मान लो 60 जा रहा है, तो ये मान लो 20, एज्यूम कर रहे हैं ये सब 20। ठीक है, और ये 20 है, मान लो इधर से 40 आ रहा था, 20 इधर गया, तो मान लो 20 इधर गया, और ठीक है, ये 10 और ये 20 और ये 30, मान लो ऐसा कुछ इधर से ऐसे गया, मतलब एक मिनट सॉरी, कुछ मिस्टेक लग रहा है, 20 अगर ऐसे है तो ये 10 इधर ऐसे। ठीक है, 10 ऐसे, मान लो ऐसा कुछ। तो दो रूल लगाने हैं, एक एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक, एक मिनट फ्रेंड्स रुको तो, हाँ अब सही है, एट अ पॉइंट, हाँ अब सही है, ये लो ये रब ही नहीं होगा अब। चलो ठीक है, कोई नहीं, रहने दो उसको उधर अकेले। ठीक है, एट अ पॉइंट एल्जेब्रिक, एट अ पॉइंट एल्जेब्रिक सम ऑफ q इज इक्वल टू 0, मतलब अगर यहाँ से q1 है, यहाँ से q2 है, यहाँ से q3 है, यहाँ से q4 है, तो समेशन ऑफ q इज इक्वल टू 0, q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 इज इक्वल टू 0, और यही चीज यूज करके मैंने यहाँ पे डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। दूसरा, दूसरा इन अ लूप, इन अ लूप, इन अ लूप summation of head loss is equal to 0। ठीक है, इन अ लूप समेशन ऑफ हेड लॉस इज इक्वल टू 0, और इसी चीज को यूज करके हम लोग लिखते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस समेशन ऑफ आर क्यू टू द पावर एन बाई समेशन ऑफ मॉड आर टू द पावर, सॉरी आर एन क्यू टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये लिखते हैं। और ठीक है, तो तुमने डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सेकंड क्या करना, एक लूप चूज करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक लूप चूज करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी अलग कलर से लिखते हैं तो थोड़ा और सही लगेगा, लूप वन, लूप वन, और ये लूप टू। ठीक है, फिर लूप वन में, लूप वन में ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, लूप वन में आर क्यू टू द पावर एन निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, आर क्यू टू द पावर एन, और q is negative, q is negative if it is opposite to loop, it is opposite to loop। हम लोग जिस लूप में मूव कर रहे हैं, हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट 20 है तो 20 निगेटिव, 10 साथ में है तो 10 पॉजिटिव, ये 20 साथ में है तो ये 20 पॉजिटिव, ये है। और अगर Q इज नेगेटिव इफ इट इज अपोजिट टू लूप, और फिर अब ये तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा कि साथ में है तो पॉजिटिव, ये तो अंडरस्टूड चीज है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैलकुलेट डेल्टा क्यू, कैलकुलेट डेल्टा क्यू। ठीक है, फिर डेल्टा क्यू मिलने के बाद, डेल्टा क्यू मिलने के बाद मान लो वो 3 आया। ठीक है,
3 आया तो सब में 10+3 20+ और ये 20 है ना, तो देखो हमारा +3 आ गया तो -20+3 करना। क्यों? क्योंकि ये फ्लो इधर में -20 है। देखो ऐसे 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 समझो, ऐसे फ्लो इधर 20 हो रहा था, मैंने उसको बोल दिया इधर -20 फ्लो हो रहा है। एक ही तो बात है, इधर 20 है यानी इधर -20, एक ही तो बात है ना। ये वैसे ही है ना कि अगर ये x है तो इस डायरेक्शन में -x, ये वैसा ही है। ठीक है, तो -20+3 और उस वाले में बीच वाले में 20+3। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो जाएगा। तो फिर अब लूप 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 कौन सा लूप 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 कौन सा करें, ये करें क्या? हाँ अलग कलर है। ठीक है, इसके बाद लूप टू में वही चीज Q, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Q इज पॉजिटिव इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ लूप, इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ लूप, और निगेटिव, और ठीक है ना, जो वहां पे लिखा था ना वही चीज इधर लिखा, वहां निगेटिव वाली बात लिख दिया तो इधर पॉजिटिव वाली। ठीक है, दूसरा फाइंड डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कैसे निकालना है? फॉर्मूला में वैल्यूज रख के डेल्टा क्यू निकालोगे। ठीक है, फिर डेल्टा क्यू आ गया तो डेल्टा क्यू सब में ऐड कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो डेल्टा क्यू -4 आया। ठीक है, माइनस भी तो आ सकता है भाई। मान लो डेल्टा क्यू -4 आया तो लूप इधर से है और डिस्चार्ज 20 ये वाला शायद अपोजिट है। ठीक है, ये इधर है, तो देखो डिस्चार्ज 20 ये इधर है और मेरा लूप के डायरेक्शन में -3 मुझे ऐड करना है। तो इसको पहले मैं चेंज करूंगा, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे कंफ्यूजन नहीं। डिस्चार्ज 20 है तो मैं इसको -20 लूप के डायरेक्शन में कर रहा हूँ। डेल्टा क्यू का वैल्यू आया है -3, तो -20 प्लस -3 यानी -23, ये करोगे। ठीक है, फिर ये वाले 20, ये 20 डिस्चार्ज के डायरेक्शन में है, मुझे उसी डायरेक्शन में -3 ऐड करना है। 20 प्लस -3 यानी 17। फिर ये बीच वाला, अब देखो फर्स्ट स्टेप में हमने इसको चेंज किया था। ठीक है, बट इस बार जब डेल्टा क्यू मान लो -3 आ रहा है और वो अपोजिट वो ऐसे आ रहा है और लूप मेरा ऐसे जा रहा है, तो एक तो -20 पहले कर दो और इसमें जब अब ऐड करोगे -3 करोगे, ये देखो पहले स्टेप में हो सकता है इसकी वैल्यू चेंज हो गई हो 17, बट हमें 17 ना लिख के पुरानी वाली ही वैल्यू लिखनी है। ठीक है, माइनस, ठीक है, ये -3, या तो देखो ऐसे ऐसे समझो, इस बात को ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, बीच वाले लूप को देख ले। ठीक है, ये बस बीच वाला लाइन इसके लिए, इसका 20 था ना, तो फर्स्ट स्टेप में सॉल्व करते वक्त इसके लिए Q इज इक्वल टू 20 यूज किया। ठीक है, और चेंज आ गया +3 का, तो 20+3 अब वो हो गया 23। अब सेकंड स्टेप उसको यहाँ पे यूज करेंगे तो Q इज इक्वल टू अब भी 20 लेंगे। मान लो डेल्टा Q आ गया -3, तो तो क्या हो जाएगा? 23 इस डायरेक्शन में था तो इस डायरेक्शन में -23, हमें इसी डायरेक्शन में -3 ऐड करना है, तो -23 प्लस -3 -26। मतलब ऐड करते वक्त खाली करेक्ट वैल्यू लेना है, ऐड करते वक्त चेंज्ड वाली वैल्यू लेना है, वरना उससे पहले फ्रेंड्स हमें अपना ये पुरानी वाली ही वैल्यू लेना है। ठीक है, वरना उससे पहले पुरानी वाली वैल्यू लेना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ हमारा हार्डी क्रॉस मेथड खत्म। किसी को कोई डाउट फ्रेंड्स? एनीवन हैविंग एनी डाउट फ्रेंड्स? क्योंकि अब यहाँ अपना टॉपिक खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब कुछ नहीं है, बस एक बकिंघम मेथड और ड्रैग एंड लिफ्ट, मतलब only one class, you are only away from one class for your fluid completion which I will surely take in special class। मैंने सोचा मैं तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट करा दूं। ठीक है फ्रेंड्स, एनीवन हैविंग एनी डाउट फ्रेंड्स? 2 मिनट रुकता हूँ, फिर क्लास वाइंड अप कर देंगे क्योंकि मैंने सब कंप्लीट करा दिया एज प्रॉमिस। बस बकिंघम थ्योरम और मॉडल एनालिसिस का भी मैं सोच रहा हूँ एक क्लास ले लूँ फ्रेंड्स, क्या है ना कि वो बड़ा टॉपिक है और आता भी है उससे क्वेश्चन। चलो मैं 2 क्लास ले लूंगा मॉडल एनालिसिस। ठीक है, आई विल टेक वन मोर क्लास ऑफ मॉडल एनालिसिस, बकिंघम मेथड एंड ड्रैग एंड लिफ्ट वन क्लास, वन कंप्लीटली फॉर मॉडल एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर दूंगा स्पेशल क्लास के लिए। ठीक है, तो अब अपना कोर्स फाइनली खत्म फ्रेंड्स।
फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ हाइड्रोलॉजी क्रैश कोर्स। ठीक है, तो अपने सब फ्रेंड्स को बता देना फ्रेंड्स। ठीक है, एकदम क्लास के लिए रेडी रहना फ्रेंड्स। पूरा हाइड्रोलॉजी हम लोग एकदम पूरा कंसेप्ट से पढ़ेंगे, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, और उसके जो भी एक दो क्वेश्चन आएंगे गेट में एकदम तुरंत लगा के अपना, कितना मान लो दो क्वेश्चन आया तो दो दो 4 मार्क्स कंफर्म, या फिर एक एक मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का तो 3 मार्क्स कंफर्म कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो let's end our today's class friends, let's end our today's class friends। आई होप सबने इस क्लास को एंजॉय किया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जिसको जो भी डाउट रहेगा फ्रेंड्स, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग मी, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू इन एनी क्लास फ्रेंड्स, whenever I will be taking hydrology। if you have any doubt you can ask me there only if you have any doubt। ठीक है, डोंट हेजिटेट इन गेटिंग क्लियर योर डाउट फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करने से पहले डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन दी Unacademy app। Don't forget to join my Telegram channel, the link is given in the description। मैं ये लिंक में मतलब जो टेलीग्राम है उस पे हर डे पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आज भी पीडीएफ ऐड कर दूंगा फ्रेंड्स एज ऑलवेज। ठीक है, तो बस वही अनअकैडमी ऐप पे डाउनलोड करके फॉलो कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए फॉर योर पीडीएफ। ठीक है, और स्पेशल क्लासेस के लिए मैं अपडेट कर दूंगा। तो आज की क्लास एंड करने से पहले फ्रेंड्स, don't forget to like, share and subscribe and click on the bell icon। Why? So that you get update notification of every class from the beginning, so that you don't miss any of your class friends। ठीक है, तो don't forget to like, share and subscribe this session। सबके सब फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, बोलो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई करें। ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड करता हूँ फ्रेंड्स। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, एंजॉय, एकदम सब खूब खुशी से एंजॉय करना, मस्ती करना फ्रेंड्स, बहुत सारा प्यार है सर का। ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड करता हूँ। बाय, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।